Rayleigh's theorem. A function fx is defined x belongs to AB such that first condition function fx is continuous interval a to b, and second function fx is differentiable interval open interval AB, and third condition function fx fa is equals to fb, x belongs to fb, then f dash c is equals to 0, c belongs to ab. Three conditions of Rayleigh's theorem. First, function is continuous of closed interval ab, and second conditions fx is differentiable in open interval ab, and third condition fa is equals to fb. Then f dash c बराबर 0, value of c belongs to a open interval ab. Rayleigh's theorem की three conditions are satisfied. Then one point c in interval open interval ab such that c belongs to ab. Rayleigh's theorem or Lagrange theorem, second Rayleigh's mean value theorem is Lagrange theorem. Lagrange theorem के लिए second mean value theorem is Lagrange mean value theorem. Lagrange mean value, so if a real valued function fx is defined interval ab such that first condition of Lagrange theorem fx is continuous function in closed interval ab में continuous function, and second condition for Lagrange theorem fx is differentiable in open interval ab. Then f dash c differentiable, value of differentiation at c is equals to fb minus fa upon b minus a, where c belongs to open interval ab. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, देन वैल्यू c निकलेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c. दिस कंडीशन f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. एंड कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपको कंटिन्यूटी की लिमिट के द्वारा सॉल्व नहीं करना है, सीधे पहचानना है. आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स की पावर, ये एफ एक्स ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन or it is also continuous function. And fourth, that trigonometric functions are continuous function. So trigonometric functions are sin x, cos x and tan x, sec x, cosec x, cot x. And fifth, exponential functions are continuous. Exponential function e की power x and a की power x are continuous. Logarithm function is continuous. Logarithm function fx is equals to log x. एंड एब्सोल्यूट मोड वाले फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x आर कंटिन्यूस फंक्शन. तो कंटिन्यूटी के लिए LHS राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से नहीं करना, हमें करना है इनसे डायरेक्ट पहचान के दीज आर फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शन. एंड सेकंड कंडीशन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए
डिसकंटिन्यूटी के लिए सम दीज आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, फंक्शन को देख के पहचान जाना कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शंस के आपको लिखाए थे। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड एफ एक्स कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। एंड tan x sec x आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, यानी मल्टीपल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए tan x sec x आर डिसकंटिन्यूअस। इनफाइनाइट होगी वैल्यू। एंड cot x एंड cos x आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई एंड प्लस माइनस 2 पाई, मल्टीपल ऑफ पाई में क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स साइन 1/x एंड cos 1/x एट डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन एफ एक्स 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें चेक करना है, सिर्फ फंक्शन को पहचानना है। और इसी तरह रोलेज verify the Rolle's and Lagrange theorem to given function and given interval. For illustrated example number first, example number 23 देखिए, verify the Rolle's theorem first, fx is equals to under root 4 minus x square, interval x belongs to minus 2 2. Verify the Rolle's theorem. To verify the Rolle's theorem, the three conditions are verified and find the value of c between interval माना थी c की वैल्यू। तो Rolle's theorem की थ्री कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के लिए हमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू से नहीं निकाल के सीधे ही फंक्शन को पहचान के करना है। दिस गिवन फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval minus 2 2। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में इसका कई नाम, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, और ये कंटिन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप सीधे लिख देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड सेकेंड के लिए डिफरेंशियबिलिटी, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट होगा, पहले ये बताया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो रूट का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स रूट एक्स वाला फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स एंड डिफरेंशिएशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एंड देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। x belongs to open interval minus 2 2. Each value of this interval, this is a real value, माइनस 2 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 2 से कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो रियल वैल्यू आ रही है। देयरफॉर फंक्शन इज ए
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x इक्वल टू -2 2। अगेन दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से नहीं करना है, सीधे ही चेक करना है इंटरवल में। तो माई x बिलोंग्स टू -2 2, -2 ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2 के ईच वैल्यू के लिए दिस फंक्शन इज रियल वैल्यू। देयरफॉर fx इज differentiable open interval x belongs to -2 2। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, टू कंडीशंस रॉलेस थ्योरम आर सेटिस्फाई, फर्स्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, सेकंड इज डिफरेंशिएबल एंड थर्ड कंडीशन ऑफ रॉलेस थ्योरम fa is equals to -2। therefore f -2 equals to, वैल्यू रखिए f -2 फंक्शन में, फंक्शन ये रहा f -2, x इक्वल्स टू -2 पुट कर रहे हैं तो 4 -4 इज इक्वल्स टू 0। इंटरवल में a एंड b की वैल्यू क्या है, -2 एंड 2, तो fa 4 -2 का स्क्वायर 4 0 एंड fb is equals to f2, v is equals to 2, so this is also 4 - 4 equals to 0, so f -2 is equals to f2। third condition is also satisfied by the given function। first condition continuity, second condition differentiability of the upper interval, and third condition is f -2 is equals to f2। then f dash c is equals to 0, f dash c is equals to 0, तो f dash c, f dash x here, this is f dash x, therefore f dash c क्या हो जाएगा, -c upon √4 - c square is equals to 0। finding the value of c implies that cancel out, तो c is equals to 0 और 0 belongs to -2 and 2, c equals to 0, 0 is open interval, belongs to open interval। therefore Rolle's theorem is satisfied for this given function fx is equals to √4 - x square, x belongs to -2 2। अगेन एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। वेरीफाई द Rolle's theorem of function fx √4 - x square given interval is -2 2। फर्स्ट कंडीशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस के लिए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड सेकंड कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन 4 - x स्क्वायर, 4 का 0 - x स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स बराबर -x/4 - फॉर ईच वैल्यू ऑफ, लिख देता हूँ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -2 2 f dash x is real, therefore fx is differentiable in open interval -2 2। second condition and third condition fa is equals to 0, fb is equals to 0, तो fa equals to f -2 is equals to f2। थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाई, यहाँ भी लिख देते हैं, थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और सी एफ डैश सी का मतलब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी इन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के एक्स से सी रखा, एफ डैश सी बराबर -c/4 - c² इक्वल टू 0 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2 2।